Well, good evening, all the parents, teachers, guests, and my dear lovely children. I hope you all are enjoying and learning all the different kinds of activities. Isn't it? Yes or no? Are you all enjoying? Yeah, that's great. I can see many of you are enjoying, of course. We have planned in such a way that you must enjoy this shows, this all camps, the activities which you have organized for you. Well, every day evening we are interacting with successful persons from different fields, isn't it? But somehow we could, since 2 days, we could not come to you with such personalities because of the cyclonic devastations. So let we have already introduced with you all actor. We have introduced with you radio jockey or a beauty pageant. We have also introduced you all to a doctor, isn't it? Now today we would like to introduce you all to a person who is from my field only, and that's the education, isn't it? That's the education, of course. He doesn't need any introduction. His name itself is giving a huge interpretation here. Yes, he is none other than the director of Akash Institute, founder of Padyan Super 30, Zindagi, chairman of Adyan Plus 2 Science College, Mr. Ajay Bahadur Singh. So please let us, with a big round of applause, welcome Mr. Ajay Bahadur Singh. Uh, Yes, good evening. Good evening, very good, children. very good evening, sir. Good evening, ma'am. Thank you. Well, sir, we are very happy. We are very grateful to have you here with us. Uh, this is really, this is one of the platform actually we are where we are showing our children to give a different exposures. We are interacting with different persons so that children will have a great knowledge of the some of the different fields, isn't it? Like that. So first of all, let me tell something about you, your name, that Ajay Bahadur. Of course, it is a big name in it, of course. अजय जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है जिसे जो कि सबको जीत सके, यानी जिनको जीता ना जा सके, यानी जिनको वश में ना किया जा सके, और बहादुर जो कि ताकत और साहस के साथ हमेशा लड़कर हर मुश्किलों को पार करते हुए आगे निकल जाए। अजय बहादुर सिंह ऐसा नाम है जो हर मुश्किलों को पार करते हुए अपनी सारी जिंदगी में जितने भी मुश्किल आए उन सबको पार करते हुए बहादुरी के साथ आगे बढ़ते रहे हैं, सबको अपने वश में इस तरह से कर लिया है कि इसी वजह से हम भी चाहते हैं कि आप आज हमारे साथ रहें। तो 1 घंटा सर हमारे साथ आपका बहुत अच्छे से जाने वाला, और हमारा भी बहुत अच्छे से आपके साथ जाने वाला है। हमारे बच्चे जो है बहुत 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 इंतजार करते रहे हैं सर आपसे मिलने के लिए, आपसे कुछ बातें करने के लिए, और काफी सारे बच्चों ने हमें ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेजा हुआ है कि वो उनसे आपसे कुछ कुछ सवाल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वेल, बच्चों को तो हम बाद में मौका देंगे, लेकिन सबसे पहले हम सर आपसे सुनना चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों से क्या कहना चाहते हैं। You are such a great educationist, you are such a great motivator, you are such a great entrepreneur also. Now in these days you have also collaborated with Byju's. Even we also collaborated with you, so that is why I think that now education is in one of the best hand in India, and we all together are going to write a history in education for our children. So of course that we are going to do this one. So without wasting much time, Neha, we want to hear something from you, sir. What you will suggest for to our children now. So please. Thank you. सच बताऊं तो आज मैं बहुत डरा हुआ हूँ, बहुत घबराया हुआ हूँ। आप अगर डर गए तो सर फिर हम और हमारे बच्चे फिर कैसे मतलब आगे रहेंगे सर। आप बिल्कुल हमारे बच्चों से किसी को डरने की जरूरत नहीं। हमारे बच्चे ऐसे हैं कि वो दूसरों को डराते, और फिलहाल वो खुद भी थोड़े बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि एक ऐसे पर्सन के साथ मिल रहे हैं आज जो ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को जिन्होंने तैयार किया है, जो एक खुद डॉक्टर बनना चाहते तो थे लेकिन किसी वजह से डॉक्टर बन नहीं सके, लेकिन उन्होंने इतने सारे डॉक्टर्स बना के आज हमारे उड़ीसा में तैयार किए, दूसरे राज्यों में तैयार किए। इतने सारे डॉक्टर्स आज हमारे साथ हैं, इंजीनियर्स हमारे साथ हैं, जो आपके आदर्शों के साथ, जो आपके सिखाए हुए रास्तों पे चले हैं सर। बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे आपके बच्चों से नहीं डरना चाहिए, लेकिन आज मैं आपके बच्चों से ही डर रहा हूं, क्योंकि
आज तक मैंने अपने देश में विदेश में पता नहीं कितने सैकड़ों सेमिनार किए होंगे। मैंने लोकसभा एनेक्सी में भी, लोकसभा संसद भवन में भी मुझे लोगों ने सम्मानित किया। और हिंदुस्तान में केवल 10 टीचर्स को सम्मानित किया था, उसमें मैं भी एक था। पर लोकसभा में मैं मेरी भी हुंकार भरता रहा, वहां पर भी मुझे डर नहीं लगे थे। मुझे दुबई बुलाया गया, कनाडा बुलाया गया। कनाडा में तो 90% लोग जो थे वो कनाडियन थे, मैक्सिकन थे और अमेरिकन थे। वहां पर भी मुझे डर नहीं लगा। और पता नहीं कितने सारे जगह गए, वहां डर नहीं लगा। बट आज क्यों डर लग रहा है, तो मैंने देखा कि मुझे डरने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से बहुत कम इंटरेक्ट किया हो। और आज मुझे इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। सचमुच डर मुझे इनसे ही है। और तो मैं टीचरों से नहीं डरा, मैं टीचर्स को ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए भी जाता हूं। मैं कई एक स्टेट में गया, गवर्नमेंट ने मुझे बुलाई, और मैं टीचर्स के हजारों के तादाद में टीचर होते हैं, उनसे नहीं डर लगता। मुझे केवल आपसे डर लगता है, इतने छोटे छोटे बच्चों से डर लगता। फिर भी मैं घबराया हुआ भी हूं। कुछ गलती हो जाए तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आज आप सब लोगों से मैं कुछ अपने दिल की बातें करता हूं, क्योंकि छोटे बच्चों से दिल की बातें करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूं आज, कि आखिर ये बच्चे क्या कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? वैदिक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक ऐसा स्कूल जो आनंद अग्रवाल सर ने एक बड़ा सोच के साथ, एक बड़ी सोच के साथ, एक इथिक्स के साथ उन्होंने उस स्कूल की स्टार्ट किया। नाम ही है वैदिक इंटरनेशनल स्कूल। इंटरनेशनल और वैदिक, वैदिक हमारे पुराने आचार व्यवहार और संस्कार का एक समन्वयन है। और इंटरनेशनल जो देश और विदेशों से जोड़ता है, बड़ा अच्छा नाम है। वैदिक हमें संस्कार सिखाता है, हम वो संस्कार सीखते हैं जो हमें मेरे पूर्वजों ने दिया है। और लेकिन उस संस्कार में रह करके हम अपना नाम देश और विदेशों में भी फैलाने का ओथ लेते हैं। और उसको फैलाने में जो सहायक हो रहा है वो वैदिक इंटरनेशनल स्कूल है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आनंद जायसवाल जी का, मैडम का भी, जिन लोगों ने मेरे, शायद मैडम की बातों से मेरी थोड़ी घबराहट खत्म हो जाए, क्योंकि नाम को ही उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, या पहले जानना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि आवाजें ज्यादा आएगी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आखिर पढ़ाई क्यों करते, क्या जरूरत है हमें वैदिक में जाने का, क्या जरूरत है हम किसी और स्कूल में जाने का, क्या जरूरत है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाने का, आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? कोई बता सकते हैं क्या? Okay, children, if you have answer, just raise your hands. Okay, we'll one by one we'll give a chance to यस each and यस, प्लीज everyone. प्लीज So प्लीज। just raise your hands. Yeah, that's right. So we have राइट। got one of the raised hand here, Vedansh. Yeah, okay, Vedansh. Uh, क्यों सर पढ़ते हैं? सर हम लोग कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं। गुड गुड गुड। और कोई बता सकते हैं क्या? yes, Ahan Agarwal is there, raising So hand. to get knowledge and make some friends. नॉलेज, वेरी गुड। और कोई बता सकते हैं क्या? Okay, Nihal is raising hand now. Next is Nihal. So, so that we can get some knowledge and we should not get back. Right. We could have some any knowledge by reading in any school, so that we our brain should be like, if someone asks us something, so we could answer. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप Children, सब it's a लोग, request to you. Please turn on your video whenever you are speaking, so that at least we can see you. And it is actually, the interactive session. So that is why we all see you, and you also must see us. That is why. So please turn on your video. Yeah, that's right. Yes, sir. Please. यस, वेरी गुड। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया, लेकिन मैं छोटा सा चीज जोड़ देता हूं जो, यस प्लीज। Sir, we study to increase our confidence and self-esteem, and when we study, we can improve our ability to learn and गुड retain गुड गुड, knowledge. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त।
लेकिन एक छोटा सा एक शब्द में मैं बता दूं कि अब बेटा छोड़ दो, मेरी बात सुन लो। एक छोटा सा शब्द में बता दे क्या हम लोग इतना मेहनत क्यों करते हैं? हम सब लोग इतना मेहनत करते हैं अपने जीवन को सफल करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। और सक्सेसफुल बनने का राज मैं बता दूं क्या? आप सब लोग बन जाएंगे। 50% सक्सेसफुल का राज मैं आज बताऊंगा, और आज से आप लोग स्टार्ट कर देंगे। मैं पूरी गारंटी देता हूं कि 50% आप सक्सेस मिल जाएगा आपको, और रेस्ट 50% के लिए काम करना पड़ेगा। बता दूं? यस और नो? Yes, sir, definitely. यस, राइट। तो बेटा पहला चीज क्या है कि कभी भी आप अपने भगवान को याद किया, जिस भगवान ने आपको इतना अच्छा, इतना स्मार्ट, इतना खूबसूरत बनाया? क्या कभी उनको धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतना खूबसूरत बनाया? कभी आप ये सोचते हैं कि आपको उन्होंने एक इंसान बनाया, एक इंसान बनाया, उसके बावजूद भी इतना खूबसूरत इंसान, जिसकी इतनी अच्छी आवाजें हो जो मैं सुन पा रहा हूं, इतने अच्छे चेहरे हो जो मैं देख पा रहा हूं? कभी ऐसा सोचा? क्या उस भगवान को धन्यवाद दिया? क्या उस भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने आपको इतने अच्छे पेरेंट्स दिए जो आपके इतना रख रखाव कर पा रहे हैं? क्या कभी उस भगवान को धन्यवाद दिया जो आपको इस फैमिलीज में पैदा कराया, इस फैमिली में जन्म लिए जहां पर आप वैदिक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है? क्या उस भगवान को धन्यवाद दिया जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को, लाखों बच्चों को, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, और आपको इतना स्ट्रांग बनाया, आपको सब चीजों को के साथ आपको दिया? नहीं दिया होगा। तो मेरे मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जब आप सुबह से उठिए तो आप अपने आप को देखिए, पूरे नीचे से ऊपर को देखिए, और देख करके खुश होइए कि भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, और इंसान में जन्म दिया। कभी सोचा यदि आप इंसान नहीं होते तो क्या होते? क्रोकोडाइल होते, एक एलिफेंट होते? नहीं, एक चींटी भी हो सकते, एक चूहे भी हो सकते। लेकिन आपको भगवान ने जन्म दिया, इतना अच्छा बनाया, अब इसको यूज करना है। तो सबसे पहले करना है, जब सुबह आप उठते हो तो भगवान को प्रणाम करिए जिन्होंने आपको एक अच्छा इंसान बनाया। दूसरा, आपको इंसान तो बनाया, लेकिन जो माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, और दुनिया में उतना केयर कोई नहीं रख सकता। कभी कभी आप गुस्सा करते हो मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर, और सोचते हो पापा ये नहीं देते मेरे को, पापा वो उनके पापा देखो वो उनको ये चीज ला दिया, उसको वो कर दिया, आप नहीं ला करके देते, मम्मा से गुस्सा करते हैं। लेकिन पापा, जब पापा हो जाते हैं ना, तब तो उनको उनका काम ही केवल यही रह जाता है कि अपने बच्चों के चेहरे पर खुशियां देखना। और वो माँ बाप, वो माँ, यदि कुछ आपने खाने के पीने के कुछ भी चीजों के कर दिया तो वो बेचारे दिन भर आपके साथ लगी रहती है कि नहीं मेरे बेटा को ये खाना, मेरी बिटिया को ये खाना, तो इसको मुझे तैयार कर। दुनिया छोड़ सकता है आपको हर हाल में, लेकिन माँ बाप नहीं छोड़ सकते। कितने बच्चों को कोरोना हो गए, लेकिन वहां पर कोई और खड़ा नहीं था, वहां पर यदि खड़ा था तो उनके पेरेंट्स थे। जैसे हजारों हजारों के तादाद में एग्जाम्पल आज के डेट में। बच्चों को कोरोना था, इसके बाद भी उसकी माँ उससे मिल लेती है, माँ को कोरोना हो जाता है और बच्चे बच जाते हैं, माँ मर जाती है। ये माँ और बाप होते हैं। इसका स्थान मेरे बच्चों दुनिया में कोई नहीं ले सकता। इसलिए यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को भगवान का रूप मानते हुए डेली उनका पैर छू करके प्रणाम करिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि 50% सफलताएं आपको यहां से ही। अब ये सोचो कि चलो
50% सफलताएं तो सर ने बता दिया। और मैं क्यों ये सफलताएं 50% मिल जाएगा? इसलिए मिल जाएगा क्योंकि सफलताओं की कुंजी हमारा संस्कार है, और ये हमारी भाग्य है, सौभाग्य है कि हम आप सब लोग उड़ीसा में जन्म लिए हैं, और उड़ीसा शुरुआत से ही संस्कार देने का काम करती है। अब मैं उड़ीसा के बारे में बताना चाहता हूं। आपका जन्मभूमि और मेरा कर्म भूमि है बच्चों। मैं भी उड़ीसा को अपना लिया है और यही मेरा कर्म भूमि है। तो उड़ीसा के बारे में बताना चाहता हूं कि ये वो उड़ीसा है जो प्रेम, सद्भाव, भक्ति, संस्कृति, कला और नृत्य का अद्भुत संगम है बच्चों। ये वो उड़ीसा है जो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शांति, मैत्री और एकता का संदेश वाहक है। उस उड़ीसा के धरती पर आप जन्म लिए हैं। आप कितने भाग्यशाली, आप बहुत भाग्यशाली। तो संस्कार आपका ऐसा है, धरती आपकी ऐसी है। यदि आप भगवान को और अपने पेरेंट्स को भगवान मानते हुए डेली यदि आप प्रणाम करते हैं तो 50% आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि जब आप पेरेंट्स की बात सुन लेंगे और पेरेंट्स को भगवान मानेंगे, भगवान को धन्यवाद देना स्टार्ट कर देंगे, तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। और जब आप गलत कोई काम नहीं करेंगे तो सही काम ही करेंगे, और जब सही काम करेंगे तो आप सफल बन जाएंगे। वेरी सिंपल। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, किसी भी सफलताओं के पीछे यदि कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं होता, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं होता। यदि कोई लोग सफल होते तो छोटी छोटी बातों से ही उनको सफलता का रास्ता क्लियर हो जाता है। अब सोचिए कि ये माँ बाप भी हैं, भगवान को भी धन्यवाद दिया, अपने माँ बाप को भी धन्यवाद दिया। इसके बाद आपका क्या धर्म बनता है? आपका ये धर्म बनता है कि अपने समाज के लिए काम करें। और समाज के लिए कैसे काम करेंगे? समाज के लिए तब काम करेंगे जब आप पूर्ण सफल होंगे। और पूर्ण सफल कैसे होंगे? पूर्ण सफल तब होंगे जब आप मेहनत करेंगे। और मेहनत करके, जैसा भी अभी मैंने बताया कि आप इंसान में जन्म लिए। यदि एक एलिफेंट होते तो उसका कोई गोल है? कोई गोल नहीं है मेरे बच्चों। क्या वो अपना 1 महीने का खाना, 1 महीने का पेड़ तोड़ करके अपने पास रखता है? नहीं रखता। वो आज का खाना खाता है, फिर आगे बढ़ जाता है, कल क्या होगा नहीं सोचता। लेकिन हम इंसान ही एक ऐसे हैं जो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और लोगों की बात के लिए अपनी प्लानिंग करते हैं, एक दूसरे के अंदर में सद्भावना पैदा करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं और चीजों को इकट्ठा करते हैं। क्यों? इस दोनों में क्या फर्क है? इस दोनों में फर्क है केवल और केवल एक ही चीज का, क्योंकि उसके अंदर भगवान ने हमारे अंदर में दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, जो उनके पास नहीं, और सब कुछ। तो इस बुद्धि को, इस दिमाग को केवल सही डायरेक्शन में यूज करना है मेरे बच्चों। दूसरा चीज बहुत गौर से सुनिएगा, इस सही डायरेक्शन में कैसे यूज करें? बहुत लोग पूछते हैं। अच्छा, मैं भी आप बच्चों से एक सवाल पूछता हूं कि आपको जो दिल में अच्छा लगता है वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस और नो? If you agree, just show your thumbs up. Yes. Very nice, very That's nice, right. very nice. बट मेरे बच्चों, एक छोटा सा बात बताता हूं आज, कि जो आपको दिल में अच्छा लगता है, जो आपको बहुत पसंद होता है, वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो काम आपको अच्छा नहीं लगता है, जीवन में सफलता पाने के लिए केवल वही काम करना चाहिए। मैडम घबरा रही होगी, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सर, थोड़ा सा तो मुझे डाउट है यहाँ पर कि आप डाउट कहना है, क्या चाह रहे हैं। डाउट है, बिल्कुल डाउटफुल है। इस डाउट को आप भी क्लियर कर लीजिए। देखो बेटा, दिल को क्या पसंद है? एक बच्चे हैं, दिल में क्या अच्छा लगता है? खेलना अच्छा लगता है, अच्छा खाना पीना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ मस्ती करना अच्छा लगता है, शादी ब्याह में जाकर के एंजॉय करना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? मोबाइल यदि मिल जाए तो क्या बात है, व्हाट्सएप और क्या क्या प्रोफाइल
और यूट्यूब और गूगल में रहना अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है इससे। क्या अच्छा नहीं लगता? पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। मम्मी हमेशा तो पढ़ने के लिए बोलती है, पापा तो केवल जब भी मिलते पापा से अच्छा बात करना चाहते वो पढ़ाई पढ़ाई की बात करने लगते हैं। इसलिए तो मम्मी पापा बुरे हो जाते हैं। तो पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? सुबह 5 बजे उठ करके हल्का फुल्का एक्सरसाइज करके कर लेना अच्छा नहीं लगता। सुबह से फिर स्टडी करना अच्छा नहीं लगता। और क्या अच्छा नहीं लगता है? और क्या अच्छा नहीं लगता है? आजकल बच्चों को बर्गर पिज्जा मिल जाए तो सब बात ही कुछ और है, लेकिन वही यदि दूध मिल जाए, दही मिल जाए तो वो बहुत पसंद नहीं करते। फ्रूट्स मिल जाए, आजकल के बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते। क्या अच्छा नहीं लगता है? खूब अच्छा लगता है। 8 घंटा 10 घंटा सो जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रात देर से सोना और सुबह जल्दी उठ जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। मैडम को भी अच्छा नहीं लगता होगा 8 घंटा 10 घंटा, यदि 8 घंटा का ड्यूटी है 10 घंटा बता दिया गया तो बड़ा गुस्से में मैडम काम करती होगी स्कूल में रह करके। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। दिस इज फैक्ट, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरा बच्चों से और सब लोगों से यही कहना है कि अच्छा क्या लगता है और अच्छा क्या नहीं लगता है। जो जो चीज आपको जीवन में अच्छा नहीं लगता है उस काम को करने की हैबिट डाल दीजिए। जैसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की हैबिट डाल दीजिए, कम से कम लोगों से बात करने का, दोस्ती करने की हैबिट डाल दीजिए, फंक्शन पार्टी में न जाने की हैबिट डाल दीजिए, कम कर दीजिए। तो वो आप एक लिस्ट बनाइए आज। यदि पेरेंट्स देख रहे होंगे इसमें तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लिस्ट बनवाइएगा बच्चों से, उनको क्या क्या अच्छा लगता है एक लिस्ट बनवाइए, क्या क्या अच्छा नहीं लगता, और वही काम करिए जो अच्छा नहीं लगता। धीरे 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 काम करते 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 वो आपका हैबिट बन जाएगा, आदत बन जाएगा। और जब आपका आदत बन जाएगा तो वो काम आपको अच्छा लगने लगेगा। और सफलताएं का राज, यदि आज मैं यहां हूं तो मैं अपने आदत के बदौलत, मैं अपने हैबिट के बदौलत। अन्यथा आज एक चाय और शरबत बेचने वाला बंदा 20,000 बच्चों को नहीं पढ़ाता। सुनना चाहते हैं इस अजय बहादुर सिंह की कहानी? जी हाँ सर, बिल्कुल। आज बताता हूं, आज बताता हूं मैं वो कहानी जो यदि आप सुनना चाहेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा टॉक का प्लेटफॉर्म जो है वो जो स्टॉक है। आप वहां पर भी हमारी करीब करीब 8-10 लाख लोगों ने उस हमारे स्टोरी को सुना है। वहां पर भी मैंने लेक्चर दिया। जैसा मैंने बताया, देश और विदेशों में बहुत सारे जगह पर मैं गया और लेक्चर दिया। लेकिन आज मैं वो बात बताना चाहता हूं आपको कि मैं कैसे सक्सेस हुआ। मैं केवल आपको जो बताया ना उसी बातों के बदौलत मैं भी सक्सेस हुआ। अभी देखिए ना, पेंडेमिक का टाइम था, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने सोचा कि अब तो खत्म हो गया, अब तो दुनिया खत्म हो गई। वहीं पर अजय बहादुर सिंह ने सोचा कि अब तो दुनिया यहीं से शुरू होती है, एक नए तरीके। यदि वक्त को हम नहीं बदल सकते तो वक्त के अनुसार से मैं अपने आप को बदल दिया और आज मेरा वक्त बदल गया। वक्त को यदि आप नहीं बदल सकते तो वक्त के अनुसार से आप अपने आप को बदल दीजिए, आपका वक्त एक दिन अच्छा हो जाएगा। वही हालत हमारी हुई कि जब पेंडेमिक स्टार्ट होता है तो मैंने एक ही बात बोला। मैं 2-3 दिन 4 दिन तक मैं खूब टीवी देखा। मैं ऐसे नॉर्मली कोई टीवी नहीं देखता था, 8-10 साल से नहीं देखता था, लेकिन देखा, मुझे समझ में आ गया होना क्या है, होना क्या है। उसके बाद मैंने एक ही बात सोचा, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। समय बहुत कठिन आ गया, इसलिए हमें सख्त हो जाना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो समाज के लिए, देश के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए। और आज आकाश इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर ने, कटक ने, और हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी और हमारे यूपी में भी हमारी कुछ इंस्टीट्यूशन चलती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ग्रुप के जितने भी 9 इंस्टीट्यूशंस है वो हमारे आकाश इंस्टीट्यूट का द बेस्ट परफॉर्मर रहा है, केवल एकमात्र फॉर्मूला की बदौलत कि मुश्किल वक्त कमांडो सर। और हमारे
जितनी लड़कियां भी थी, वो लड़कियों को मैं सैल्यूट करता हूं कि इस तरीके से उन सब लोगों को मोटिवेट किया कि रात को 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे तक भी पेरेंट्स से फीस ले लेते थे और उन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेवारी हमने ले लिया। और मैंने ये कोशिश किया कि बच्चों को जितनी फैसिलिटीज ऑफलाइन में मिलती थी उससे ज्यादा ऑनलाइन में मिले, और 12 आवर्स का डाउट क्लियरिंग से लेकर के इंटायर फैसिलिटी उन बच्चों को दिया। और मुझे गर्व है कि जहां पर सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट मिट गई थी, मैंने इस पेंडेमिक टाइम में एक भी आदमी को खोया नहीं और सबको साथ लेकर के, सबका साथ लेते हुए आज भी आगे बढ़ते चले गए। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरी एक छोटी सी कहानी, दर्द भरा कहानी, कि मैं जीवन में कभी हारा नहीं, आप भी को भी नहीं हारना है। मैं जीवन में कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं नहीं तो सीखता हूं, या तो जीतता हूं नहीं तो सीखता हूं। हारने का नाम मुझे नहीं मालूम। एक ही बार जीवन में मैं हारा था, वो आपको अपनी कहानी के दरमियान में मैं बताता हूं कि मैं जब 10th क्लास, पहले पढ़ाई कैसे करना चाहिए उसका भी एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, फिर भी देता हूं। पढ़ाई कैसे करना चाहिए मेरे बच्चों, 10th क्लास तक तो मैं पढ़ता ही नहीं था। मैं क्या करता था, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन मैं अच्छा बच्चा नहीं था, बुरा बच्चा था। सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वहां पर पढ़ाई के दरमियान में जब मैं स्कूल जाता था तो 70% टीचर मुझे देख करके भाग जाते थे और 30% को देख करके मैं भाग जाता था। कितना अच्छा बच्चा है वो, बताओ आप लोग कितने अच्छे बच्चे हो और मैं कैसा बच्चा था, सोचो। मतलब टीचर और स्टूडेंट्स की कभी मुलाकात ही नहीं होती थी, तो पढ़ाई क्या होगी। अपने मोहल्ले का सबसे अच्छा बच्चा था, क्योंकि मम्मी से बहुत डर लगता था। और मोहल्ले के बाहर चले जाओ तो सबसे बदमाश बच्चा था। काम ही कुछ नहीं था, 8-10 रोटी खाता था, कुश्ती लड़ता था, एक दूसरे को पिटाई करता था, बस यही काम था। लेकिन एक बार दशहरा की वो रात मुझे याद है और मेरी जीवन बदल जाती वहां से। दशहरा में हमारे, मैं झारखंड देवघर का रहने वाला हूं, आजू बाजू के लोग आते थे और मिलने के लिए आते थे, प्रणाम करने के लिए आते थे। तो बहुत सब लोग आकर के चले गए। तो मेरी माँ, मैं शाम को रात को बैठा था 10 बजे, तो मेरी माँ मेरे सर पर हाथ डालती है और हाथ डाल के बोलती है, बेटा सबके बेटे फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं, यदि तुमने फर्स्ट नहीं किया तो मैं अपना चेहरा समाज में कैसे दिखाऊंगी। ये बात मुझे बहुत बुरा लगा मेरे बच्चों। मैं बस ये सोचता रहा कि मेरे जो मेरे कारण या मेरे जो करनी के वजह से मेरे पेरेंट्स को कोई चीज भुगतना पड़े, ये बहुत बुरा है। क्योंकि गलती यदि मैं करता हूं तो मेरे सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन गलती मैं करूं और उसके वजह से मेरा पेरेंट्स चेहरा ना दिखा पाए, इससे बुरी बातें और कुछ नहीं होती। मैंने सोचा मैं सब कर सकता हूं, बट ये नहीं कर सकता। अपने मां का चेहरा ना दिखा पाए समाज में, ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब से पढ़ाई करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना इतना आसान थोड़ी है। मैं तो पहले पढ़ता ही नहीं था, साइंस का ट्यूशन नहीं जाता था, संस्कृत का ट्यूशन पढ़ता था, मतलब टाइम पास करता था। एक टीचर आते थे घर में, लेकिन फिर भी मैंने किताब निकाला, पढ़ने की कोशिश किया, फिर रख दिया, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या पढूं, कैसे पढूं। तो लास्ट में मैंने सोचा कि अब एक ही उपाय है कि पढ़ना ही है। इसलिए पढ़ना है कि मुझे फर्स्ट आना है, और फर्स्ट इसलिए आना है क्योंकि मेरी मां मेरे चेहरा अपने समाज को दिखा पाए। तो ये सोच करके मैंने क्या किया कि हर किताब का पहला पेज का पहले लाइन से, चैप्टर के पहले लाइन से पढ़ाई स्टार्ट किया, और एकमात्र ओथ लिया मैंने कि जब तक नहीं समझूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा।
सिंपल सी, जब तक मैं नहीं समझूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे टीचर भी आते थे, एक टीचर बड़ा अच्छा टीचर थे उस जमाने के, कोई इंजीनियर वगैरह थे, बीटेक किए हुए थे, वो आते थे, उन्होंने मेरे को पढ़ाते थे। अब देखो कि टीचर से मैंने सवाल पूछा पहला चैप्टर का, यदि 10th में कुछ बच्चे होंगे तो उनको पता होगा कि एक फिजिक्स में S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एक क्वेश्चन आता है। तो कुछ बच्चों ने मैं वो क्वेश्चंस आता था मेरे टाइम में, शायद अभी भी आता है, मैंने बच्चों के सेमिनार में बता रहे थे कि अभी भी है शायद। तो चैप्टर्स हो सकता है चेंज हो गए, वेरी गुड, ये सारे 10th के बच्चे हैं, गुड। तो यदि वो क्वेश्चंस आता है तो मैंने टीचर से पूछा, टीचर ने मुझे बताया, बोला समझ गए, मैंने कहा नहीं समझा। फिर दोबारा टीचर्स ने बताया कि अब समझ गए, मैंने कहा नहीं समझा। तो आप तो समझते हो ना कि टीचर को 2 बार बोल दो नहीं समझा तो कितनी आशीर्वचन कितने मिलते हैं आपको, है? तो फिर मेरे को भी टीचर बोलने लगे, अरे तुम बेवकूफ हो, बेहुदा हो, गधा हो, फिर से समझाता हो, समझो ठीक से। तीसरा बार समझाया, फिर बोला नहीं समझा तो मत पूछो कि फिर क्या हुआ। मेरे दिमाग में कूड़े भरे हैं, भूसे भरे हैं, सारी प्रवचन मैंने उनका सुना, सारी गालियों को सुना। लेकिन मैं सारी गाली सुनने के बाद एक चीज सोच लिया था कि जब तक मैं नहीं समझूंगा तब तक नहीं बोलूंगा कि मैं समझ गया। ये चीज मेरे और टीचर के बीच में जब हल्ला गुल्ला हुआ तो मेरे पापा उस समय घर में थे, वो आए और बोले क्या बात है बेटा, मास्टर साहब क्या हो गया? तो सर ने बोला कि देखिए ना अंकल, इनको समझा रहे हैं और ये समझ ही नहीं रहा है, आप बैठिए देखिए आपके सामने फिर समझाते हैं। फिर से उन्होंने समझाया, प्रूव्ड S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, प्रूव्ड, समझ गया। मैंने कहा सर याद हो गया बस समझा नहीं। पापा समझ गए, बिकॉज वो भी एक इंजीनियर थे, तो वो समझ गए। उन्होंने बोला कि मास्टर साहब ये किताब दे दीजिए, मैं कल इसे भी समझा दूंगा, आप भी समझ। फिर टीचर ने बोला कि अजय तुम्हारा तो सारा कोर्स खत्म हो गया था, तुमने पूरे किताब खत्म कर लिए थे, आज पहला चैप्टर लेकर के आए और वो भी तुम नहीं समझ रहे हो। मैंने कहा सर किताब तो आपने खत्म कर दिया, मैंने तो आज से पढ़ाई शुरू करने के लिए सोचा। तो मैं बच्चों आप सब लोगों को इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आपके पास एक बहुत अच्छे टीचर हैं जो बहुत प्यार से आपको समझाते हैं। इसलिए आप डरिएगा नहीं, पूछते रहिएगा, जब तक नहीं समझिएगा तब तक पूछिएगा। मुझे मालूम है कि वैदिक इंटरनेशनल स्कूल में बहुत पेशेंसफुल टीचर्स हैं, उन मैंने मेरे टीचर जैसे गालियां नहीं देते थे, तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, लेकिन पूछिएगा जरूर, और प्लीज 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 अच्छे से समझिएगा। और जब तक नहीं समझते हैं तब तक आप बोलिएगा नहीं कि मैं समझ गया। अब आइए, इसके बाद तो मैं गया, इस तरीके से पढ़ता हुआ गया, एग्जाम दे दिया, एग्जाम दे करके आ गया। फिर रिजल्ट की बारी आई, तो उस टाइम में रिजल्ट जो थी वो नेट पर नहीं आती थी, उस टाइम पे रिजल्ट लेकर के टीचर रजिस्टर में रखते थे। तो वहां पर गया, मैं भी गया वहां पर, जल्दी जल्दी गया क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट थे हमारे अंदर में कि क्या हुआ क्या हुआ। तो जब मैं गया रिजल्ट देखने के लिए, तो वहां पर देखता हूं तो टीचर, वही टीचर बैठे हुए थे जिससे मैं डरता था, जिसको देख करके मैं भागता था। बड़ा अच्छा नाम भी उस टीचर का है, मारखंडे सर, मार करके खंड खंड कर देते, बहुत पिटाई भी सचमुच करते थे, नाम के अनुसार ही पिटाई करते थे। तो मैं बोला, मैंने कहा हाथ जोड़ते हुए गया कि सर मेरा रिजल्ट निकल जाओ। तो बोला तुम्हारा रिजल्ट तो सबको पता है। मैंने कहा सर क्या हुआ? तो अरे तुम फेल से ज्यादा और कर भी क्या सकते हो। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट था मेरे दोस्तों, ये हालात थी हमारी। मैंने कहा नहीं सर, बहुत मेहनत किया हूं, बहुत मेहनत किया हूं सर, आप प्लीज दिखा दो। कहा चलो चलो हटो हटो, तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए अभी हमारा नहीं है, इतने सारे बच्चे हैं, इसको देखना है। फिर आधा एक घंटा के बाद गया, फिर मैंने बोला, रिक्वेस्ट किया, तो फिर डांट खिलाया उन्होंने। फिर थर्ड डिवीजन देखा नहीं मिला, सेकंड डिवीजन देखा नहीं मिला, उसके बाद तो इतना मेरे ऊपर बरस गए और मेरे को गाली फाली दे करके हटा दिया। अब फील्ड में बैठे हुए थे बच्चों में, 4 घंटा वेट किया, सोचो कैसा दिन होगा, 4 घंटा वेट किया। और उसके बाद भी जब उन्होंने नहीं बताया तो मेरे को थोड़ा सा, जो एक सोचते थे कि ये थोड़ा अच्छा बच्चा है,
उस टीचर को हाथ पर पकड़ करके बोला सर मेरा रिजल्ट दिखवा दीजिए, और फिर जाकर के जब रिजल्ट देखा तो वो मार्कंडे सर कहते अजय ऐसा कैसे हुआ, अजय ऐसा कैसे हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्स मैं आज तक भूल नहीं पाया। उसके बाद जो उनके अंदर में हमारे प्रति भावनाएं जगी वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट था। इसलिए मेरे बच्चों, वो तमाम काम मैं 10th क्लास में कर लिया जो बिल्कुल नामुमकिन सा था, संभव नहीं था, असंभव था। जहां पर मैंने आपको कहा कि 70% टीचर मुझे देख करके भागते थे, 30% टीचर को देख करके मैं भागता था, इससे अच्छा बच्चा तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, जीवन में सुना भी नहीं होगा। तो ये रहा। अब देखिए, फिर मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, उसकी शादी हो जाती है, एक बहुत अच्छे इंजीनियर फैमिलीज में शादी हो जाती है, और फिर मुझे डॉक्टर बनाने के लिए मेरे पापा एक मेडिकल कोचिंग में डाल देते हैं। लेकिन देखिए, शायद कुछ ही महीनों के बाद जब मैं मेडिकल का कोचिंग कर रहा था तो मेरे पापा आते हैं पटना, और उनको एक डिजीज हो जाता है और किडनी फेल हो जाता है उनका। तो कहीं ना कहीं मेरे डॉक्टर बनने से पहले ही मेरे पिता इतना बड़ा मरीज बन जाते हैं कि डॉक्टर बनने का सपना वहीं से टूट जाता है। और फिर अपने बीमार पिता के लिए, क्योंकि उसी साल अपने बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी, उसी 4-5 महीने के बाद पिता बीमार हो जाते हैं, और मैं ही उस घर का बड़ा लड़का था, 17-18 साल का उम्र था मेरा। जब हमारे पिता बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज भी हमारे बिहार में, पटना में नहीं हो पाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उस जमाने में किडनी का ट्रांसप्लांट की बात यदि कोई सुनता था तो उसको जयप्रकाश नारायण, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन थे, सर और मैम जानती होंगी, उनका याद आता था। लोग सोचते थे कि जब वो नहीं बच पाया तो ये क्या बचेंगे। हमारे घर में कोई दूसरा और कोई इनकम का सोर्स नहीं था। अब ऐसे सिचुएशंस में मेरी पढ़ाई छूट जाती है और पिता को लेकर के एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर चूंकि सिस्टर की शादी होती है, एक एवरेज फैमिली के में यदि कोई भी शादी होती है तो ऐसे भी लोन वगैरह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी और सारी चीजों को, लोगों का मदद लेते हुए, कुछ आभूषण को बेच करके हम लोग चेन्नई चले जाते हैं और चेन्नई में अपने पिता का इलाज कराते हैं। इस इलाज के दरमियान में उनका ट्रांसप्लांट हो जाता है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स का भी पैसा खर्च होता है, बहुत उनके डिपार्टमेंट के लोग, इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ पैसे कलेक्शन करके देते हैं। इन सारे से किडनी का ट्रांसप्लांट तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उनकी दवा इतनी महंगी थी कि उनकी सैलरी का डबल उन दवाई में खर्च होता था। अब तो सारे चीज खत्म हो गए थे, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर हम लोगों ने ट्रांसप्लांट के दरमियान में ही कर्जे हो गए, जितने माँ का आभूषण था वो बेच दिया, इवन कि जिस घर में रहता था उस आधे घर को भी गिरवी में डाल दिया। मेरे पास कोई रास्ते नहीं थे। वापस अपने घर लेकर के आते हैं तो जिस रोड पर, जिस रास्ते में हमारा घर होता था, हमारे जान पहचान वाले लोग उस रास्ते से गुजरना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि यदि हम इधर से जाएंगे तो ये माँ बेटे पकड़ करके हमसे कुछ मांग लेंगे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिर मैंने सोचा कि अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अब 17-18 साल, एक इंजीनियर फैमिलीज का लड़का, कभी कोई तकलीफ देखा नहीं था। लेकिन फिर आप देखिए कि आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि एक गरीब लोग थे, सैकड़ों गरीबों की कहानी सुनी होगी जो बहुत सक्सेसफुल हो गए, सैकड़ों अमीरों की कहानी सुनी होगी कि अपने राजा लोग जो थे आज जमीन में आ गए। लेकिन ऐसी कहानी एक अलग सुनी होगी कि अमीरी की कब्र में पनपी हुई गरीबी कितनी जहरीली होती है, उसके दंश को मैंने सहा है। मैंने अपने फैमिलीज में, बहुत खुशहाल फैमिली हमारी,
किसी भी तरीके का तकलीफ नहीं देखा था मैंने। लेकिन तकलीफ एक गरीब के घर का बच्चा यदि पैदा लेता है उस झोपड़ी में, उसे क्या पता कि अच्छाई मैंने खुशियां क्या होती है, अमीरी क्या होती है। लेकिन एक अमीर परिवार के, एक अच्छे परिवार के बच्चे यदि उस गरीबी को देख ले तो शायद जीना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसको देखा और मैंने सोचा कि अब यहां से जो सफर हमारी शुरू होती है, अमीरी की कब्र में पनपी हुई गरीबी कितनी जहरीली होती है, शायद उसे देख करके सुन करके आपको भी खुद में सोचेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। हाँ, तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास कोई रास्ते नहीं है, तो मेरे देवघर के, झारखंड में देवघर का रहने वाला हूं, बैद्यनाथ धाम देवघर, वहां पर एक बहुत बड़ी श्रावणी मेला लगती है जिसमें 115 किलोमीटर तक लोग पैदल चलते हैं जल चढ़ाने के लिए। मैंने उसी के बीच रास्ते में चाय और शरबत की एक दुकान खोल ली। जितना घर से तिरपाल था, बल्ला था, दिस दैट था, वो सब चीजों को लेकर, चौकी टेबल लेकर के जाते हैं, केटली ग्लास लेकर के, और चाय की दुकान। अब क्या करें, आपकी आपकी मातृभूमि में संस्कार था, मेरे भी पेरेंट्स ने थोड़ी बहुत संस्कार मुझे भी दिया। अब संस्कार के वश में मुझे पता नहीं था बिजनेस क्या होता है। मैं वहां पर चाय शरबत भी बेचता था, खूब मेहनत करता था, खूब मेहनत करता, इतना मेहनत करता था। मुझे वो दिन आज भी मैं नहीं भूल पाता हूं कि एक छोटा सा तिरपाल के अंदर में मैं रहता था। जब बारिश होती थी तो जब सोया रहता था तो वहां पर पानी गिरते थे, फिर चौकी उठा करके उधर करता था तो उधर साइड से पानी आते थे। इस हालात में मैंने अपने जीवन को बिताया। आप समझ सकते हैं, श्रावणी का मेला जो है, जुलाई मंथ का मेला टाइम जो होता है, उतनी ही गर्मी भी होती है और उतनी ही बारिश भी होती है। ऐसे सिचुएशंस में मैं काम करता रहता था, खुश होकर के काम करता। और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जितने भी बोल बम, कुछ ऐसे लोग होते थे जो नॉन स्टॉप 115 किलोमीटर रुकते नहीं थे, वो चलते ही रहते थे या दौड़ते रहते थे और सीधा जल लेकर के आते थे। उन लोगों को मैं क्या करता था कि गर्म चाय पिला देता था, गर्म पानी करके उनके पैरों को, चलते रहते थे दौड़ते रहते थे, उनके पैरों को धोता था ताकि उसके अंदर में एक एनर्जी आए और जो मसल को फ्री कर दे ताकि वो आगे और बढ़ पाए। ये सब काम करते थे, तो उन सब लोगों को सपोर्ट करता रहा। मुझे नहीं पता था मेरे बच्चों कि इसके पीछे, चाय बना करके जब उनको देता था उसके पीछे चीनी भी लगते हैं, दूध भी लगते हैं और किरासन का तेल भी लगता था। ये मुझे पता नहीं था। गर्म पानी करते थे, पानी मुफ्त में तो जरूर मिल जाता था, लेकिन गर्म करने के लिए जो किरासन का तेल लगता था वो मुफ्त में नहीं मिलता था। ये मुझे नहीं होश थी। और जब श्रावणी मेला खत्म हो जाता है तो गया था कुछ कमाने के लिए मेरे दोस्तों, लेकिन 600 रुपया का नुकसान हो जाता है। मेरे पास अब पैसे नहीं थे, जमीन वाले को पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब मैं उनके पास जाता हूं और उनका पैर पकड़ता हूं और कहता हूं कि मेरे तो नुकसान इतने हो गए, आप बांस बल्ला तिरपाल टेबल चेयर जो भी है वो आप ले लीजिए। उसने भी वो माना नहीं कि नहीं तुम बेच करके दो पैसे। फिर भी मैंने कहा कि आप बेच लेना, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। और मेरे बच्चों, वो जो आया था कमाने के लिए, क्या हालत हो सकता है कि ये घर में बीमार पिता है और उसका बेटा कुछ कमा करके, कुछ दवा के पैसे के लिए आया था और पैसे लेकर, मैंने पैसे कमाएंगे तो दवा लेकर के जाएंगे, और यदि वो भी बच्चा को नुकसान हो जाता है, जो घर से टेबल चेयर तिरपाल लेकर के आता है वो भी लेकर के ना जाए, तो मुझे लगा कि फिर मुझे घर जाने से क्या फायदा, मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा बरगद के पेड़ में, बरगद का पेड़, जेंट ट्री जिसको कहते हैं, उसके नीचे ही मैं करता था। मुझे लगा ना अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं इसी पेड़ के नीचे लटक के मर जाऊंगा। और मैं 2 दिन प्रयास करता रहा कि वो जगह खाली हो ताकि मैं अपने आप को आत्महत्या कर। इतना दर्द भरी हुई थी, इतना फ्रस्ट्रेशन था, इतना दुखी था। और आपको, जंगलों में मैं 2 रात गुजारा। लेकिन अचानक, जैसा अभी मैडम ने कहा, मुझे मेरे पिता की याद आई और मेरे अपने नाम की याद आई कि मेरे पिता ने मेरा नाम इसलिए रखा था कि मुझे आत्महत्या कर लेना पड़े। क्या होगा, क्या सोच करके रखे थे।
फिर मैंने अपने ही नाम का अजय बहादुर सिंह, जैसा कि मैडम ने बताया, जो कभी पराजित नहीं होता, बहादुर तो बहादुर ही होता है, और सिंह के लिए तो कुछ डेफिनेशन देने की जरूरत ही नहीं है, जहां चला जाए वो मैदान खाली हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे मेरे पिता ने जो नाम रखा था, उसी नाम ने आज आप सब लोगों के सामने मुझे खड़ा करने का मौका दिया, अन्यथा आज नहीं होता, आज बिल्कुल नहीं होता। यहां से घर जाता हूं, खाली हाथ घर जाता हूं, मां से मुलाकात होती है, कोई बात नहीं होती है, आंखें में आंखों मिलते हैं, और वहां के आंसुओं से ही केवल बात होती। मां भी समझ गई, मेरे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि मुझे तो करने हैं। मेरे पिता ने मुझे मेरा जो नाम रखा है, एक न एक दिन मेहनत करके इसको पाना है। अभी एक अभी अभी जस्ट मैंने एक कोट दिया है, आप जब देखेंगे तो मैं अपना फेसबुक में कभी भी कोई दूसरी चीज नहीं देता, केवल और केवल बच्चों से रिलेटेड देता हूं। तो जस्ट अभी अभी मैंने दिया है इस पैंडेमिक के समय में देखते हुए कि मेहनत का फल और समस्या का हल, मेहनत का फल और समस्या का हल जरूर निकलता है, चाहे थोड़ा देर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन निकलता जरूर है। तो वो चीजें था कि मेहनत करना है, मेहनत करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद मैं वो तमाम काम करने लगा जिससे मैं पैसा अर्न करता हूं, और इसके बाद मैं घर घर जा जा करके सोडा मेकर मशीन बेचने लगा, शादी और ब्याह में कोल्ड ड्रिंक्स बेचने लगा, ये दशहरा पूजा का पंडाल में सॉफ्ट ड्रिंक्स डाल मैंने बेचने लगा। तो हर वो काम करने लगा जहां से मैं पैसे अर्न करता हूं। और मुझे वो भी दिन याद है कि मैं सोडा मेकर का एक सिरप बेचता था 30 रुपया में, तो चेहरे कभी कभी खिल जाते थे, और उस 30 रुपया में 10 रुपया का सब्जी ले आते थे, 20 रुपया का दवा के लिए। तो उस दर्द को भी मैंने सहा। अब क्या था कि इस तरीके से मैंने 2 साल, +2 पढ़ने के बाद मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेडिकल का सपना तो खत्म ही हो गया, साथ में ग्रेजुएशन भी नहीं कर पा रहा था। तो मेरे पापा ने बहुत दुखी होकर के बोले एक बार, बेटा कि कुछ भी जीवन में करने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, कम से कम ग्रेजुएशन कर। बोल तो दिए। तब तक मैं 2 साल 3 साल तक खूब मेहनत किया, और थोड़ी बहुत घर को स्टेब्लिश कर दिया। मैं वो तमाम काम करने लगा जहां से पैसा अर्न कर पाऊं, हर काम को करता था, और मैं 16 घंटा काम करता था। सुबह 6 बजे से उठ जाता था, और 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक मैं काम करता था, इसके अलावा कोई काम। तो लेकिन धीरे 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 इतना करने लगा कि होम ट्यूशन भी करता था, हर काम करता था। 2 घंटे पढ़ा दिया तो मैं 300 रुपया 200 रुपया मिल जाते थे वहां से। तो इस तरीके से मैं हर काम करने लगा, और धीरे 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 हमारी परिवार थोड़ी बहुत स्टेब्लिश होने लगी। इसके बाद मैं चला जाता हूं पटना। पटना में सेल्फ स्टडी करने के लिए चला जाता हूं, और वहां पर कंपटीशन का तैयारी भी करता हूं, साथ में ग्रेजुएशन भी करने लगता हूं। अब बड़ी मुश्किल थी, चला तो गया, पैसे कहां से आएंगे, मकान के किराया कहां से देंगे। तो फिर मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया, घर घर जाकर के ट्यूशन पढ़ाने लगा। आज आप सब लोगों के मम्मी पापा कभी कुछ मांगते होंगे, फटाफट आपको बना देते होंगे, नहीं तो मार्केट से ला करके खिला देते हो। मेरे बच्चों, मुझे वो दिन भी याद है कि भूख बहुत तेज लगी होती थी, मेरे पॉकेट में मात्र 1 रुपया होता था, ऑप्शन 2 ही था, या तो 7 किलोमीटर पैदल जाएं और बीच में 2 समोसा खा लें, और या तो फिर बस में जाएं और उसके भाड़ा दे दें, क्योंकि मेरे पास और कोई साधन नहीं था। यदि मैं बस से जाता हूं तो समोसा नहीं खा पाता, भूखे रहना पड़ता है, और यदि मैं पैदल जाता हूं, समोसा खा लेता हूं, पेट भर लेता हूं, तो दूसरा ट्यूशन नहीं कर पाता, वो छूट जाएंगे, क्योंकि 1 घंटा लग जाएगा पैदल जाने में। इतनी तकलीफें और कठिनाइयों का सामना करता था।
जब भी उधर से देखता था, आज भी मेरे को वो समोसा की दुकान, आपसे बात कर रहा हूं और समोसा और स्वीट्स की दुकान मुझे याद आ रही। इतनी तकलीफें थी मेरे बच्चों। लेकिन धीरे 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 हम अपना काम करते थे, ट्यूशन करते थे, खुद पढ़ते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। फिर बाद में जब ट्यूशन बढ़ने लगा तो मैंने अपना एक एक साइकिल खरीदा। पैसे तो इतने थे नहीं कि नया साइकिल ले ले, तो एक सेकंड हैंड साइकिल लिया, जो वो भी इंस्टॉलमेंट में लिया। 20-20 रुपया महीना दे करके 200 रुपया का साइकिल खरीदा। और वहां से फिर से ट्यूशन हमने स्टार्ट किया। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती। ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि कहीं ना कहीं और यदि मैं आगे पढ़ूंगा तो मेरा घर और टूटता चला जाएगा। शायद उनको मेरी सहारा के लिए जरूरत है। और इतनी पढ़ाई करने के दरमियान भी मैं हर श्रावणी मेले में उसी रास्ते में, अब पहले तो चाय का दुकान लगाता था, अब गाड़ी लेकर के सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचने लगता था। और मैं आपको बताता हूं कि मैं हारा नहीं था। वहां से 600 रुपया का नुकसान हुआ था और उसी श्रावणी मेले में एक एक महीने में मैं 26,000 रुपया कमा लेता। तो क्या है, मैंने पहले ही बोला था, मैं जीवन में कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं नहीं तो सीखता हूं। मैंने सीखा था हारने का कारण क्या क्या है। जो मेरे तिरपाल और टेबल और चेयर बेचने पड़े उसके कारण क्या क्या थे, मैं सारे कारण को ढूंढ लिया। इसका कारण आपको भी बताना चाहता हूं। पहले खुद का रक्षा करो, फिर दूसरों का रक्षा करना। पहले खुद का पेट भर लो, फिर दूसरों का पेट भरना। यदि तुम खुद ही जिंदा नहीं रहोगे तो दूसरों को कहां से बचा पाओगे। यह सीखा मैंने। हो सकता है यह गलत हो, बट यस, ये सही है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, जब मेरी पेट भर जाए तो दूसरों को भी देने से कमी मत करना। तो मैंने वही गलती किया था और उसी के लिए मुझे सुसाइड करने तक जाना पड़ा। तो बाद में मैं धीरे 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 धीरे, यस, जब 26,000 रुपया कमाने लगा तो 600, 800, 1,500, 2,000 रुपया वहां से ही लोगों को फ्री में पिलाता था। टेक्निक को बदल दिया, सारी चीजों को बदल दिया। एनीवे, तो वो एक लंबी कहानी है। तो फिर हम लोग यहाँ आते हैं पटना में और एक छोटा सा ग्रुप ट्यूशन स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ट्यूशन करते हैं 6 बच्चों के साथ। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये 6 बच्चे, मुझे नहीं पता था कि आज 20,000 बच्चों में बदल जाएगा। आज 13 ऑर्गेनाइजेशन हम चलाएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने जहां पर भी इंस्टीट्यूशन चलाया है वो द बेस्ट इंस्टीट्यूट हुआ है। आज उड़ीसा, उड़ीसा, उस उड़ीसा की बात कर रहे हैं जिसको लोग पिछड़ा हुआ राज्य समझता था, लेकिन पूरे आकाश इंस्टीट्यूट में सबसे अहम पोजीशन यदि है तो उड़ीसा का है और उड़ीसा के बच्चों का है। ये वही और उड़ीसा के बच्चे हैं, आपके जैसे बच्चे हैं जो लगातार 3 बार उड़ीसा का टॉपर हो जाता है। ये वही बच्चा है जहां पर जिपमर का टॉपर मिलता है। ये वही उड़ीसा के बच्चे हैं जहां पर एम्स के 4th और 6th और कितना पता नहीं कितना रैंक लेकर के जाते हैं। तो आप ही हैं जो उड़ीसा को तो बदल ही दिया। उड़ीसा का नाम देश और विदेशों में भी कर रहे हैं। उसमें थोड़ा बहुत सहयोग हम कर पा रहे हैं, मेरे लिए यही खुशी है। तो धीरे 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 ये सिलसिला चलता रहता है। और आपको फिर बताता हूं कि कहीं ना कहीं जब मैं इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, ग्रुप ट्यूशन किया, ग्रुप ट्यूशन से थोड़ा एक छोटा सा बैंकिंग का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। और धीरे आपको ये भी मैं बताना, एक टीचर को भी बताना चाहता हूं, यदि यहाँ पर टीचर्स है तो उनको भी बताना चाहता हूं कि कभी मत घबराइएगा कि 6 घंटा या 8 घंटा ड्यूटी है उसके जगह पर 10 घंटा कर दिया। ये जो अजय बहादुर सिंह है, आप बिलीव नहीं करेंगे, केवल ड्यूटी ही किया है। यदि 24 घंटा में 22 घंटा की ड्यूटी कर दिया जाए तो मत सोचिएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। यस, मैं पता नहीं कई एक रात नहीं सोता था। मैं अपने रूम में दो बेड लगे रहते थे। पटना की बात कर रहा हूं, वो भी एक मिनिस्ट्रियल क्वार्टर का आउट हाउस में मैं रहता था। तो वहां पर 2 बेड रहते थे। मैं 8 बजे इंस्टीट्यूट बंद करता था। मैं 10 बजे, 10:30 बजे
वो वहां पर गम वगैरह तैयार करता था, उसके बाद चला जाता था पोस्टर सटवाने के लिए 10 बजे 11 बजे रात के बाद, क्योंकि 10 बजे के पहले तो कोई अपने दीवार में पोस्टर साटने देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो 11 बजे के बाद हम लोग चले जाते थे पोस्टर साटने के लिए। अब देखिए टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करते थे, सेविंग कैसे करते थे। मैं देखता था कि पोस्टर सटवा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? तो मुझे ये लगता मैं तो देख रहा हूं केवल, मैं तो इंस्ट्रक्टर हो गया, सुपरवाइजर हो गया। नहीं, मुझे भी पोस्टर साटना चाहिए, और मैं भी 100-200 पोस्टर साट करके जाता था। मुझे खुशी होती थी कि उस जमाने में 200 रुपया 1000 पोस्टर साटे जाते थे। मुझे लगता था चलो आज रात में 4 घंटा काम करके मैं 40 रुपया कमा लिया। अब देखिए, अब 12 बजे 1 बजे 2 बजे वापस पोस्टर साट करके घर जाते थे। घर जाते थे तो वहां पर बच्चे बैठे होते थे सारे जगह पर, दोनों बेड पे बच्चे होते थे। बच्चों को अब मैं उनको पढ़ाना पड़ता था, फिर उनको पढ़ाने लगते थे। और इसके बाद कभी कभी उसी के बीच में इतना छोटा हाथ पैर मोड़ करके सो जाते थे, लेकिन सोते ही बोलते थे तुम पढ़ रहे हो ना, सोए तो नहीं। सपना में भी यही बोलते थे, और उठ जाते थे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में उठ जाते थे। तो हमारे बच्चे बोलते थे कि सर प्लीज सर सो जाइए, आप भरोसा रखिए कि मैं नहीं सोऊंगा। तो ये प्यार, ये बॉन्डिंग और ये रिलेशनशिप हमने बच्चों के साथ दिया, और यही कारण है कि हमारी सफलताएं, मैं जो पटना में इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया मेरे बच्चों, आपको गर्व होगा कि मैंने डिफेंस सेगमेंट में और बैंकिंग सेक्टर में आज तक मैं कम से कम 12-13 हजार बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। 12-13 हजार बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया। कोई ऐसा इंडिया में कोई डिफेंस सेगमेंट सेक्टर नहीं है जहां पर मेरे 25-30 बच्चे नहीं होंगे। यहां पर भी चिल्का में जाएंगे और करतार कोचिंग का नाम लेंगे तो वहां पर भी आपको बच्चे दिखाई देंगे कि इतना इतना बच्चे सिलेक्शन इंडिया में होने लगे, इंडिया के हर कोने में होने लगे, कि उन लोगों को डाउट हो गया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से टिक टिक ट्रिप्स एंड टेक्निक्स को हम लोगों ने अपनाया और हम लोगों ने सक्सेस दिलाया। तो यहां से धीरे 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 हमारी पड़ाव चलती है, और आज आपके सामने हिंदुस्तान के 7 स्टेट में काम करने का मौका मिल रहा है, और जहां पर भी है द बेस्ट है। इसलिए आपको भी कहना चाहेंगे, कभी भी मत, ये आपका काम क्या है, हर आदमी का ड्यूटी है, एक विद्यार्थी का काम क्या, विद्या का अर्जन करना। तो आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आपको पढ़ाई करना, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना, और जब मेरे जैसा सक्सेसफुल हो जाए तो एक और काम है। वो क्या काम? वो ये काम है कि अब समाज के लिए कुछ करना। हर लोगों की ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कि अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने अद्यंत कॉलेज कैसे खोला? अद्यंत कॉलेज में इसलिए खोला कि जब मैं यहां देखा तो देखा कि या तो सीबीएसई में बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल है, और भी आईसीएसई में स्कूल है, लेकिन उड़ीसा बोर्ड के बच्चों के लिए कोई एग्जाम्पल के जैसा स्कूल नहीं है। तो मैंने उड़ीसा बोर्ड के बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया, और वहां पर भी 50 बच्चों को मैं हर साल फ्री में पढ़ाता हूं। उसका रहना खाना पीना सब कुछ फ्री करता हूं, और मुझे गर्व है कि मेरा पहला बैच का बच्चा एटम 50 के नाम से मैं करता हूं, वहां का बच्चा आज एम्स में पीजी कर रहा है। यही मेरे लिए सेटिस्फेक्शन। लोग मुझे कहते हैं कि एबी सिंह पागल है। यस, हो सकता है पागल है, लेकिन मुझे तो जो दिल को अच्छा लगता है, क्योंकि अब दिल की बात सुनता हूँ, सही और गलत नहीं सुनता हूँ। अब दिल की बात सुनता हूँ कि मेरी जिम्मेवारियां भी है, मेरे दिल की भी बात है कि हमें इन बच्चों के साथ रहना चाहिए जिसको कोई नहीं देख पाता है। अब इसके बाद मैंने जिंदगी प्रोग्राम स्टार्ट किया। जिंदगी में क्यों किया, कैसे किया? तो जिंदगी का प्रोग्राम भी देखिए बच्चे ने मेरे से करवाया, मैंने नहीं किया, मेरे से बच्चे ने करवाया। एक बार मैं जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गया पूरी। वहां से जब मैं लौट रहा था तो एक बच्ची मिलती है छोटी सी, वो माला बद्धी बेच रही थी। तो मेरे को भी बोला अंकल माला ये ले लो, माला ले लो, बद्धी ले लो, और दीप वाला जो दीप का मिलता है वो दे रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं बेटा छोड़ दो। लेकिन मैं फिर दूसरे हाथ में मैंने देखा कि उसका एससी वर्मा का एक किताब था फिजिक्स का। मैंने कहा अरे
एक तरफ से तुम बेच रहे हो ये किताब, तो हाँ अंकल प्लीज प्लीज अंकल ले लीजिए अंकल, ये आप जैसे ले लेंगे तो मैं जिससे जो पैसा मिलेगा पढ़ने खाना खा लूंगी या खाना खा करके पढ़ने चली जाऊंगी। मैं थोड़ा सा चौंक गया, कह रही ये क्या कर रही है। तो फिर मैंने उससे बहुत सारी, पहले उसका खरीद भी लिया, उससे बहुत सारी बातें किया। बातें करने से पता चला कि, और उसके पिता भी, फादर जो थे, जगन्नाथ जी के मंदिर के थोड़ा आगे में मैट बिछा करके, एक चटाई बिछा करके वहां पर भी छोटे छोटे फोटो, कैलेंडर और दिस दैट बेच रहे थे। तो उस लड़की से मैंने मिला और उस लड़की से पूछा तो उसने बोला कि नहीं अंकल मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। तो मैं क्या करना चाहती हूँ? तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि ऐसे बच्चे डॉक्टर बनेंगे। तो मैंने कहा कहाँ पढ़ती हो? तो सरकारी स्कूल में पढ़ा था। तो हम कह रहे तुम इसमें क्या कर पाओगी? तो हाँ जरूर कर पाएंगे। हम कैसे करोगी? तुम्हारे पास पैसे नहीं है खाने के, तुम कह रही हो कि नहीं मैं खूब पढ़ूंगी, जैसे भी होगा मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं चला आया, घर आ गया, भुवनेश्वर आया। मैं बड़ा सोचने लगा यार ये तो डॉक्टर बनना चाहती है। उसकी हालात को देख करके ना मुझे अपना जिंदगी की याद आ गई, बचपन की याद आ गई कि एक जमाने में मैं जब डॉक्टर बनना चाहता था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास भी खाने के पैसे तक भी नहीं थे। और मैं इसी वजह से डॉक्टर बनने के, मेरे डॉक्टर बनने के पहले ही मेरे पिता भी इतने बड़े पेशेंट बन गए, मैं मरीज बन गए, तो कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। आज मेरी जिम्मेवारी है कि ऐसे गरीब और लाचार बच्चों को मुझे डॉक्टर बनाना चाहिए। फिर 4 दिन के बाद मैं फिर से जाता हूं और उसी ट्विंकल साहू को ढूंढता हूं और उसको लेकर के आता हूं भुवनेश्वर, और वह उनके जैसे जैसे 20 बच्चों को मैं इकट्ठा करता हूं और उन तमाम 20 बच्चों को रहने का, खाने पीने का, पढ़ाई लिखाई का, कोचिंग का, सारी चीज मुफ्त में कराता हूं। आज मुझे फक्र है, खुशी है कि 20 में से पहले ही साल में 18 बच्चे डॉक्टर बनते थे। और इस बार भी जब 2020 का रिजल्ट आता है सितंबर में, तो 19 बच्चे पढ़ रहे थे, 19 के 19 बच्चे हमारे मेडिकल क्वालिफाई कर जाते हैं और यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में उनका एडमिशन होता है। मैं आपको, अब आप देखिए कि ये बहुत आसान नहीं है। इसमें कैसे बच्चे, मैं उस बच्चे के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे वही ट्विंकल साहू डॉक्टर बन जाती है, जब उसका सिलेक्शन हो जाता है उसके मदर फादर बहुत खुश होते हैं और पापा भी उसके बहुत खुश होते हैं, चलो डॉक्टर। लेकिन उसको बहुत तो पता नहीं था, लेकिन जब उसको मालूम चलता है कि यदि डॉक्टर बनने के बाद मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो 30,000 रुपया फीस लगता है। उसने बोला 30,000 रुपया हम कहां से लाएंगे? वो तो बिल्कुल पागल सा हो गया। ये सोच करके वो जो घर में था वो घर छोड़ करके भाग गया। मेरे पहली बच्ची का कहानी बताता हूं, जिन्होंने जिंदगी फाउंडेशन की शुरुआत करवाई मेरे से, और वो घर छोड़कर, तो फिर वो फोन करती है और फिर हम लोग कहते हैं कि तुम ढूंढो, हम लोग व्यवस्था करेंगे। और वो 4 दिन के बाद उसके फादर घर आते हैं, वापस लौटते हैं। ऐसे बच्चों की कहानी, ऐसे बच्चे जो इस्कॉन टेम्पल में अपने जीवन बिताती है, जिसके फादर 6 क्लास में जब बच्ची पढ़ती थी, वो बच्ची का फादर का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है। वो राजमिस्त्री का काम करते थे, गांव जाते हैं, गांव में भी उसको बहिष्कार कर देता है, माँ बेटी को दोनों को भगा देता है। वो भुवनेश्वर के शहरों में, शहर के सड़कों में इधर उधर भटकते हैं। बाद में किसी ने बताया कि इस्कॉन टेम्पल में खाना मुफ्त में मिल जाता है। वो लोग माँ बेटी चले जाते हैं इस्कॉन टेम्पल में, वहीं पर खाना खाते हैं और फिर वहां पर खाना खाते हैं और वहीं पर उनका कोई लोग मिल जाता है, जो बातचीत के दरमियान में पता चलता है कि उसी के फादर ने उनका घर बनाया था, राजमिस्त्री का काम करते तो घर बनाया था। तो फिर जाकर के उनके पास वो बोलता है, मिलता है, बात करता है, तो वो एक कमरा दे देता है उनको और आज तक उसी कमरे में रहती है। उस बच्ची को भी मैं पढ़ाया और वो भी बच्ची आज डॉक्टर बन जाती है। ऐसे एक दो नहीं है। अभी एक और बच्ची की कहानी सुनाना चाहता हूं जो 2020 में डॉक्टर बनी है। वो बच्ची है खिरोदनी, खिरोदनी साहू। वो बच्ची आपको अनुगुल के किसी गांव में रहती है। जब पिछले बार लॉकडाउन होता है वो बहुत परेशान हो जाती है, उसके पास मोबाइल भी नहीं होता है। किसी रिलेटिव का मोबाइल लेकर के गांव में किसी पहाड़ के ऊपर जाती है, जंगल के पास, और वहां पर से वो ऑनलाइन पढ़ाई करती थी और बहुत परेशान होती है। बोलती है सर मुझे प्लीज बुला लीजिए, प्लीज बुला लीजिए। और वो लड़की एक दिन एम्बुलेंस लेकर के भुवनेश्वर पहुंच जाती है। मजबूरन मैं उसको अपने घर में रख लेता हूं।
और फिर उसको पढ़ाता हूं। इसी दरमियान में कुछ हाथी आकर के उस गांव में, उनके गांव में बहुत भूचाल मचाया, जिसमें उसके घर भी टूट गए। लेकिन बच्चे, भले ही उसके घर टूट गए, लेकिन उसका जज्बा नहीं टूटा था, उसका इरादा नहीं टूटा था, उसका विल पावर नहीं टूटा। वो घर नहीं जाती है, फिर भी पढ़ती है, और आज वो बच्ची पढ़ करके डॉक्टर बन जाती है, और एससीबी में वो पढ़ाई करती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये तो एग्जाम्पल में पूरी रात बीत जाएंगे, इतने बच्चों की कहानियां हो गई। तो इस तरीके के बच्चों को, तो ये हमारा सोसाइटी के प्रति एक फर्ज है जिसे हमें करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जीतना तो सभी चाहते हैं, हम आप सब लोग जीतना चाहते हैं, पर किसी की जिंदगी जीतना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब हमारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, हजारों, लाखों और करोड़ों जिंदगियां जीतते हैं। भले ही मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो क्या हुआ, यदि मैं डॉक्टर बनता तो शायद मैं हजारों लोगों का जान बचा पाता, लेकिन मेरे आज सैकड़ों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं जो लाखों और करोड़ों लोगों की जान बचा पा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आज मैं एमबीबीएस नहीं बन पाया, लेकिन हम अपने कर्मों के बदौलत, कई एक यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दे दी, ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दे दी, लेकिन लोग मुझे डॉक्टर अजय बहादुर सिंह बोलने लगे। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब तक मैं समाज के अपने जैसे गरीब, लाचार और बेबस बच्चों को, 100 बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं अपने नाम के पहले डॉक्टर नहीं लिखूंगा। इसलिए मैं हर ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि को भी मैंने साइड में रख दिया, और आज मैं एक सिंपल अजय बहादुर सिंह हूं, और मैं आप सब लोगों का कैरियर बनाने का एक जिम्मा लिया है, डॉक्टर 100 बनाने के लिए एक जिम्मा लिया है। और 100 ही नहीं, ऐसे तो हजारों डॉक्टर मैंने बनाया। आज यदि उड़ीसा की बात, ये तो मैं जिंदगी फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, यदि मैं आज उड़ीसा की बात करूं तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 70% बच्चे केवल आकाश इंस्टीट्यूट के होते, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आज लगातार 3 साल से आईआईटी जेई का टॉपर होता है, तो आकाश का ही बच्चा आईआईटी जेई का टॉपर होता है। जेई एडवांस का टॉपर भी आकाश का बच्चा होता है, जेई मेन का भी टॉपर आकाश का बच्चा होता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में, कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना समय चला गया। लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, मेरे बच्चों, घबराइएगा मत जीवन में कभी भी, और काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब लोग जी लेते हैं मेरे बच्चों, जिंदगी तो सब लोग काट लेते हैं बच्चों, लेकिन आप सब लोग जिंदगी ऐसा जीना कि एक मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसा जीना कि एक मिसाल बन जाए। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। यदि आप सब लोग कुछ पूछना चाहते हैं, ऐसे मैं डरा हुआ हूं, थोड़ी सी डर मेरी निकली है, फिर भी यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो डरते डरते मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। Thank you, sir. Thank you very much for telling us so inspirational story of yours, sir. आपके कहानी में इतने सारा दर्द छिपा हुआ है, लेकिन उसके साथ एक सक्सेस स्टोरी है जहाँ पे से आपने एक, अब आज मैंने जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वो सफल मुकाम आपने पाया है, और वो सब और सब आपके मेहनत का ही नतीजा है सर। जिस मैंने हर मुश्किलों को पार करते हुए आप निकल कर आए हो सर। मतलब मुझे नहीं पता, आजकल के, जैसे आपने कहा, एग्जाम्पल दिया ऑलरेडी, कि आजकल के बच्चों को मुंह से निकलते ही सारी चीज उनके सामने होती है, लेकिन वो एक टाइम था कि जहाँ पे इतनी मुशक्कत करनी पड़ती थी हर छोटी से छोटी चीज को पाने के लिए भी। आज का टाइम बिल्कुल बदल चुका है उस टाइम से, और आपने बहुत सारी सीखे दी सर अपने स्टोरी से। बच्चों, आपने सुना, सबसे पहला लेसन सर ने कहा कि कभी हारना मत, कभी मत हारना, क्योंकि जिस दिन आप हार गए तो उस दिन बहुत कुछ लूज भी कर जाओगे। तो सबसे पहले हारना मत। उनके पापा ने उनको कई सारी चीजें सिखाई हैं, जिससे हमने सीखा आज सर से बहुत सारी चीजें। आई होप दैट यू ऑल ऑफ enjoyed this session also and learned so many things from sir. You must have inspired from sir's story also. Well, without wasting much time, we have already passed on much time here. Let us hear some questions now. Let us take some questions now. Already few students are raising their hands. One of the students previously already requested to us, that is Prachi. Are you there, Prachi? Please, team, unmute Prachi now. My technical Yes. team is there. Yeah. Hello, sir. Good evening. My name is Prachi, and my question is you
is that you had to suffer a lot during your days, and also we are not able to pursue your dream. So, how did you get over it, and what inspired you to keep on going in after facing such conditions? Once again, please. Yes, sir. So, my question is that you had to suffer a lot during these days, your days, and also we are not able to pursue your dream. So, how did you get over it, and what inspired you to keep on going in after facing such conditions? बेटा, जैसा कि जिंदगी में तो हारना ही नहीं है। ड्रीम, इससे अच्छी ड्रीम क्या हो सकती है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, हजारों लोगों को डॉक्टर बना दिया है। सेटिस्फाइड जिंदगी, जिंदगी जो है आप बिल्कुल सेटिस्फेक्शन के साथ जिए। यदि आज मैं काम नहीं करता, आज इतनी कितनी बड़ी बात है कि एक अनपढ़ लोग इतने लोगों को पढ़ा दिया। आज कितनी बात है, कितनी बड़ी बात है कि एक सबसे यंगस्टर था मैं, और उड़ीसा को 3 बार द बेस्ट फ्रेंचाइजी का अवार्ड दिला दिया पूरे हिंदुस्तान में। ये कितनी बड़ी बात है कि लोग आज लोकसभा का, मैं मेंबर नहीं हूं, लेकिन लोकसभा में मुझे सम्मानित करने के लिए बुला लेते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि कनाडा और अमेरिका जैसे राष्ट्र भी मुझे बुलाते हैं। और ये कितनी बात है कि कैलिफोर्निया से लोग रिसर्च करते हुए मेरे पास आते हैं और आज जिंदगी फाउंडेशन के बच्चों को गोद ले लेते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि एचपी जैसी कंपनी भी हमारे जिंदगी फाउंडेशन के बच्चों को पूरे लैपटॉप दे देते हैं। तो बेटा, कोई जरूरी नहीं है, ये मेरा ठीक है, उस समय में लगा कि मैं अपने ड्रीम को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन आज शायद मैं बताया ना, मैं डॉक्टर बनता तो केवल हजारों लोगों का जिंदगी बचा पाता। आज जो मेरे हजारों बच्चे डॉक्टर बन गए तो करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचा पाएंगे। इससे बड़ी और अच्छा क्या हो सकता है। मैं तो सबसे फॉर्चुनेट हूं कि मैंने सारे ड्रीम को अचीव कर लिया। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। So you must have got your Yes, answer, sir. beta. Thank you, sir. Yeah. Now, another child that you have asked question, that is Samarth Sharma. Samarth Sharma. Samarth Sharma, are you there? Just raise your hand if you're there. Okay, I don't think that Samarth Sharma is there actually. Okay, then another one is the Gianna Masih. Gianna Masih. Gianna Masih, are you? Yes, unmute yourself. Technical team, kindly unmute Gianna Masih. Okay, that is Suman Sharma. One of the child is there, Suman Sharma. Yes, Suman, a very young child is there. Ma'am, my name is Samarth Sharma. Okay, Samar Sharma, you are there. Fine. Actually, your name is little different, so that is why you have requested earlier. So that is why I called your name. Yes. Yes. So what's your question? Ma'am, my question is, sir, for IIT and JEE preparation, I have to focus in which subject and how I will have to prepare from now onwards? अभी आप किस क्लास में पढ़ते हो बच्चे? Sir, 3 class, 3rd. आईआईटी में जाने का सबसे अच्छा फार्मूला ये है कि आप 3 क्लास के सारे सिलेबस को बहुत अच्छा समझ जाए। ठीक है, अभी आप 3 क्लास को पढ़िए, और जो साइंस का है ना, साइंस का पता नहीं अभी सिलेबस होता है कि नहीं, आई डोंट नो। तो यदि होता है तो अच्छी बात है। बस ये सोचिए, जब किसी आईआईटीएन को देखिए, सक्सेस होने का दूसरा तरीका है, जब किसी आईआईटीएन को देखिए तो आप उनके साथ इंटरेक्ट करिए, बातें करिए। आईआईटी का कॉलेज कितना बड़ा होता है, उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, उस कॉलेज के लोग कहाँ कहाँ पूरे वर्ल्ड में हैं, ये सब बातें करते रहिए।
और जब आप और आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो साइंस पोर्शन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, और आप केवल फोकस करेंगे कि मुझे आईआईटीएन बनना है तो आप ऐसे ही बन जाएंगे। फोकस से तो सब कुछ होता है ना। देखिए कितना स्ट्रांग होता है, एक मैग्नीफाइंग क्लास में जब फोकस कर देते तो कागज के को जला देता है, जब थोड़ा अनफोकस्ड हो जाता है तो कुछ नहीं होता है। तो आपका ये बहुत बड़ा फोकस है कि आप हर बच्चों से मिलिए जो सक्सेसफुल हैं, जो आईआईटी पढ़ते हैं, भले ही आप बहुत छोटे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप साइंस में ध्यान रखिएगा, आप आईआईटी कंप्लीट कर जाइएगा। फिर जब आप 8-9 में आएंगे तो फिर मेरे से सवाल पूछेगा, सर अब ये बता दो कैसे है, तो मैं आपको बताऊंगा कि 9th क्लास और आईआईटी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, 9th को कैसे पढ़ना है, 9th को पढ़ करके आईआईटी के क्वेश्चंस का जवाब कैसे दे सकते हैं। इन तमाम बातों को मैं तब बताऊंगा जब आप 9th में। ओके, थैंक यू। तो बेटा आप बहुत छोटे हो, थोड़ा सा और प्रिपरेशन की आपको जरूरत है, कुछ और साल आगे पढ़ जाओ, उसके बाद फिर आप जैसे सर ने कहा आईआईटीएन से बात करो, और शायद सर से भी बात करना जरूरी होगा आपको, और मिलेगा जरूर सर से एक बार, इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन आल्सो। Okay, now next question, that is by Gianna. You are already there, I think. Gianna? Yes, ma'am. Please. Hello, sir. A very good evening. I am Gianna Missy. Sir, Good evening. almost all of the people start deciding their definite dreams from their school days. So I want to ask you that from which class a person should start their studies for clearing the PMT and PET exams, and how many hours should they study for that? Very good question. बहुत बढ़िया। किस क्लास में आप? Sir, I'm in class 9th. वाओ, ग्रेट। देखो बेटे, आपकी स्टार्ट हो गई है जर्नी, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, और पीएमटी के लिए, जेई के लिए आप जो भी करना चाहते, एक चीजों के ऊपर फोकस करिए, एक चीजों के ऊपर फोकस करिए। और मैं श्योर हूं कि आप यदि 9th क्लास में आप, मेरी आवाज आ रही? जी हाँ सर, बिल्कुल। Yes, sir. राइट। तो यदि आप 9th क्लास के एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो दिमाग में सेट कर लीजिए 9th क्लास का सिलेबस 11th क्लास से मिलता है, और 10th क्लास का सिलेबस 12th क्लास से मिलता है, और यही फाउंडेशन है। यदि टीचर्स अच्छे से पढ़ाएंगे तो 9th क्लास के सिलेबस को पढ़ा करके भी पीएमटी में कैसे कैसे किस किस तरह का क्वेश्चन आता है ये भी कोरिलेट कर पाएंगे। और लेकिन आपके पास जैसे भी बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपका ड्यूटी है कि एनसीईआरटी का हर वर्ड के ऊपर कमांड कर लीजिए, और यदि आप एनसीईआरटी का हर वर्ड के ऊपर कमांड कर लेते हैं तो आपको पीएमटी में जाने से कोई रोक नहीं सकता, राइट। तो साइंस को, पेपर को बहुत अच्छा से पढ़िएगा, ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा 9th and 11th 10th and 12th, इसलिए फाउंडेशन आपने स्टार्ट कर दिया है। तो 9th बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, 10th करते करते आधा पीएमटी हो जाएगा। Okay, so children, that's it for today, because we have already taken a long time now for even sirs also, because he's a so busy person. He's preparing so many students together to be a doctor, isn't it, to be an engineer. So you have already got some of the ideas, and also how to prepare for it. Already subjects as sir suggested, science and maths, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, एज सेड बाय सर्स। एनसीईआरटी की बुक्स में हर एक चीज छोटी छोटी करके बहुत अच्छे से समझाई हुई है। आप एनसीईआरटी बुक्स को पूरा पी जाओ अच्छे से, एकदम पढ़ पढ़ के एकदम पूरी अच्छे से घोल करके पी जाओ, and you will definitely understand each and every concept if you'll read it properly. That is, means this is my guarantee to you all, isn't it? So that is why you must read all the books. That is why I said, okay, fine. Is there anyone else they want to ask a question? Already we have many students. Okay, Ananya Tiwari. एक अनन्या तिवारी को हम परमिशन दे देते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। Thank you, ma'am. First of all, sir, I want to say good evening to you. सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर आप इतना हेल्प किए लोगों को, और सर आप इतना सक्सेस पाए, तो सर आपको कैसा लगा ये सब पाकर? वेरी गुड। आप जब किसी को हेल्प करते हो, मतलब आप
बेटा जब आप अपना टिफिन लेकर के आते हो और अपने दोस्तों को उसमें शेयर करके खिला देते हो तो आपको कैसा लगता है? अनन्या, अनन्या थी ना? Yes, yes, sir. Yes, sir. Ananya. I कैसा think लगता है already अनन्या? we went into a mute mode. Yes, तो kindly technically unmute her. Yeah. सब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, जबकि आपकी पेट भी नहीं भरती है, आधा खिला देते हैं, आधा ही पेट भरा रहता है, तब भी आपको अच्छा लगता है। आज आपके जो सर है उनको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए उनको वो भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आप सोचो ना, आप आधा खाते हो टिफिन, आधा दूसरे दोस्त को खिला देते हो, तब भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन मैं पूरा ही खा लेता हूँ और फिर अपने चीजों को दूसरों को भी बना लेता हूँ, दूसरों को भी डॉक्टर देखता हूँ। बस एक ही दिखता है, क्या फर्क पड़ता है? मैं डॉक्टर बनता तो कितने लोगों को देख पाता, इतने बच्चे मेरे डॉक्टर बन रहे हैं। आज के डेट में यदि देखा जाए तो एवरी ईयर 500 600 मोर देन 5000 स्टूडेंट्स हमारा उड़ीसा से डॉक्टर बन चुका है। आप सोचिए कितने करोड़ लोगों का वो इलाज कर सकता है। यदि मैं एक डॉक्टर बन रहता तो शायद उतने लोगों का नहीं सेवा कर पाता। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और आज रियली मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जीवन में सेटिस्फैक्शन जरूर मिलना चाहिए। Thank you, तो sir, for giving such a beautiful answers to our children. अगर बच्चों आप लोग को पता नहीं है, मैं सर का जिंदगी जो ऑर्गेनाइजेशन, जिंदगी जो फाउंडेशन है उसके बारे में बता दूं। ये जिंदगी फाउंडेशन जो है, ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को, अंडर प्रिविलेज मीन्स द चिल्ड्रन हु आर नॉट हैविंग द फाइनेंशियल फैसिलिटीज, दैट मीन्स दे आर नॉट हैविंग मच मनी to be a doctor or to get the admissions in such medical colleges. So this institution or this organization is helping out those children to go for it, isn't it? They are helping out those underprivileged children, and that is why many of students from this organization, they have got the help of sir only, from this organization only, and they have become a doctor today. Many are there already. So sir, वही जैसे आपने कहा, अगर आप खुद डॉक्टर बन जाते तो शायद ऐसे कुछ पेशेंट्स को चेक कर रहे होते, और हमारे पास इतने सारे डॉक्टर्स नहीं होते आज के दिन में। आप ही के वजह से आज हमारे पास इतने सारे डॉक्टर्स हैं। आपने इतने सारे डॉक्टर्स को तैयार किया है कि आज के इस जो एक सबसे बड़ा पीरियड जो चल रहा है, सबसे भयानक टाइम जो अभी चल रहा है, उस टाइम के लिए जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आज वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम सबकी सेवा कर रहे हैं। उन सबको सैल्यूट, और सर उन सबके साथ साथ आपको सबसे बड़ा सैल्यूट सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। लास्ट में मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, हर पल तेरा ही नाम होगा, हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। बस जी जान लगा करके अपनी पढ़ाई को करना, जी जान लगा करके अपने पढ़ाई को करना। देखना आने वाला वक्त तेरा ही गुलाम होगा, आने वाला वक्त तेरा ही गुलाम होगा। बिल्कुल मत घबराना, जीवन में जो भी सोचा है उसको जरूर प्राप्त कर लेना। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। Thank you sir, thank you very much for being with us, thank you for coming and for accepting our invitation also. थैंक यू, So थैंक यू मैम। goodbye sir, goodbye, see you again tomorrow, goodbye.